Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Friends, I'm Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor Sonu Sood. धन्यवाद लालिमा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताज़ा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक प्रकाश चावला। नमस्कार प्रकाश जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार। और पहले हेडलाइंस के साथ Lalima Aneja Dang. Thank you, Sonu. Let's begin with the headlines. Benchmark domestic equity indices end in positive territory, offsetting geopolitical tensions. Sensex gains 106 points. Nifty closes above 24,400. Cabinet approves revised Shakti policy for coal allocation to power sector. And global crude oil prices continue upward trend. Brent crude trades at $62.56 per barrel. भू राजनीतिक तनावों के बावजूद प्रमुख घरेलू सूचकांक बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 106 अंक बढ़ गया। निफ्टी 24,400 के स्तर को पार कर गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिजली क्षेत्र के लिए कोयले के आवंटन से जुड़ी संशोधित शक्ति नीति को दी मंजूरी। और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में बढ़त का रुख जारी। ब्रेंट क्रूड $62.56 प्रति बैरल पर था। Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. शुरू करते हैं शेयर बाजार से, जहां भू राजनीतिक तनावों के बावजूद अधिकांश क्षेत्रों में खरीदारी हुई, जिसके चलते प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक मामूली बढ़त पर बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 0.13% की तेजी से 106 अंक बढ़कर 80,747 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.14% की बढ़त से 35 अंकों की वृद्धि दर्ज करता हुआ 24,414 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां सराहनीय मजबूती दिखाई दी और ये सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी के मुकाबले कहीं अधिक तेजी में रहे। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 1.3% से अधिक उछाल दर्ज हुआ और स्मॉल कैप सूचकांक 1.1% से अधिक की तेजी पर बंद हुआ। Let's take a look at the stocks in detail now. Well, the benchmark domestic equity indices today ended with modest gains, shrugging off geopolitical tensions supported by buying across most sectors. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, rose 106 points or 0.13% to close at 80,747. The National Stock Exchange Nifty 50 added 35 points or 0.14% to settle at 24,414. The broader market indices at the BSE displayed impeccable resilience and outperformed benchmark indices. The mid-cap index gained over 1.3% and the small-cap index climbed over 1.1%. In the Sensex pack, 18 out of 30 companies edged up. Among the top gainers, Tata Motors climbed over 5%, Bajaj Finance rose over 2.1% and Eternal advanced over 1.8%. In the top laggards, Asian Paints slid over 3.5%, Sun Pharma slipped more than 1.9% and ITC dropped over 1.1%. In sectoral indices at the BSE, 19 out of 21 sectors ended in positive territory. In the top gainers, auto added over 1.7%, consumer discretionary gained over 1.2%, and metal increased almost 1.2%. The only two laggards were FMCG, which fell over 0.4%, and healthcare ended nearly flat.
The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,206 companies advanced, 1,683 declined, and shares of 157 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 26 companies hit their 52-week high, while 95 companies hit their 52-week low. So, Prakash ji, we had always heard of the fact that Sensex is sensitive to sentiments. What happens to all that? What brings so much immunity to the Sensex? Is it a strong leadership? Because when Ukraine-Russia happened, it moved. When COVID happened, it moved. Right now, demat account holders are at 2-year low in April. Still, we find at 80,000 plus Sensex. Does it reflect a strong leadership and the sentiment that goes with it? Actually, what happened was, you have mentioned in your readout about the geopolitical tensions at our borders, right at our borders. So when overnight developments took place, it was expected that the market could crash. But it did not happen so. And there were several reasons for it. One was the market, because the kind of run-up that we had, market had almost factored as something was coming. For the last, since April 22nd, so there was quite a bit of run-up where something was coming or the other. It was almost factored in. So the market was psychologically prepared that something would happen. So it was not a big shocker for the market. Right. It has already absorbed it, factored in. That was one part of it. That's why it showed resistance or the resilience the way you saw it today. The second part was the global cues were largely positive. When the market opened, Asia was already, a lot of Asia was green because some of the Asian markets are ahead of us. So they were green. The global cues were positive. And then we had this, obviously, today's, if you see the movement, there was a brief period of red mark also in the Sensex. But the recovery was sharp enough. शुरुआत में और फिर रिकवरी जब आई तो फिर अभी आज का जो हमारा जो moral of the story of our Sensex is, it has remained resilient and there is not much of a movement. It has not really gone down. Contrary to some of the concerns that we might had. So एक तरह की larger picture ये convey करता है that Indian economy has the resilience to absorb such developments. And then we had other things. We had India-UK trade. That's right. Adding to the positive sentiment. Right. So that is how, at the end of the day, you see Karachi Stock Exchange, it has dropped sharply. But we are going, we are as you, in your script, you said, you read out, shrugged off. So we have shrugged off with a lot of comfort. आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही कि इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग है. सो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे जैसा आपने मेंशन किया कि एक तो इंडिया यूके ट्रेड डील जिसकी बहुत टाइम से बात हो रही थी वो फाइनलाइज हो गई कल शाम, और बाकी भी जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, चाहे वो जीएसटी कलेक्शंस हो, या जो इंटरेस्ट रेट्स में अब कमी आ रही है, या आप जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो 6% प्लस है ऐसे समय पे जब कुछ देश जो है वो रिसेशन की कगार पर है. सो ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे स्टॉक मार्केट्स की स्ट्रेंथ के लिए भी. देखिए हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ जो है वो कुछ चीज़ों से निकल के आती है. एक तो साइज ऑफ द इकोनॉमी, हम लोग $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, 5वें नंबर पे है. 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, 1.4 बिलियन 140 करोड़ लोगों की मार्केट है. इट्स ह्यूज मार्केट. दैट्स वाई काफ़ी मुल्क जो है हमसे ट्रेड डील करना चाह रहे हैं. इतनी बड़ी मार्केट किसके पास है? तो एक तो हमारे इकोनॉमी का साइज़ अच्छा खासा बढ़िया है. दूसरी आपने बात करी कुछ एक चीज़ें ऐसे हुई हैं कुदरतन जो है,
अमेरिका में डर है रिसेशन का, हम लोगों को एक quarter तो contract ब्रिंक ऑफ रिसेशन पे आए हुए हैं। Technically तो है, because Technically is, yeah, two consecutively quarters. 2 quarters they have टेक्निकली gone through नहीं recession. है, बट ब्रिंक उस पे ऑलमोस्ट मतलब हो सकता है। कारण यह है कि वहाँ जो टैरिफ वो प्रॉब्लम हो रही है, टैरिफ वार के ये टैरिफ डिसरप्शन का ये जो भी हुआ है पूरे वर्ल्ड को हिला रखा था। अभी तक तो पिछले प्रोग्राम में वही डिस्कस कर रहे थे। तो एक तो वो रीज़न था, और हमारे साथ क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी के जो कुछ इनहेरेंट स्ट्रक्चरल जो चीज़ें हैं वो किसी तरह से हमारे फेवर में होती गई। जैसे आप ऑयल को ले लीजिए, अब क्रूड ऑयल आज के रीड आउट में आपने पढ़ा है कि ये बढ़ा, लेकिन एट द एंड ऑफ दैट इज 62 है ना, कहाँ पहुंचा हुआ था ये? Exactly. बिल्कुल। तो हमारा क्रूड ऑयल सॉफ्ट चल रहा है। हम लोग 85% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, बहुत बड़ा हमारे लिए फेवरेबल फैक्टर है। हमारी यूएस डॉलर इंडेक्स बिकॉज ऑफ टेरिफ वॉर, यूएस डॉलर इंडेक्स वाज कमिंग डाउन, फायदा हमें हो रहा था क्योंकि हमारी करेंसी में स्टेबिलिटी आ गई। हमें ये चिंता सताई जा रही थी कि हमारा रुपी डॉलर एक्सचेंज खराब ना हो जाए, लेकिन बिल्कुल हम सही सलामत हैं, हमारा बड़ा एक स्टेबिलिटी आ गई। इनफैक्ट उसी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ एक और चीज़ है कि हमारा रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुए हैं पिछले वित्त वर्ष में। ऐसे समय पे जब ये संकट चल रहे हैं, रिकॉर्ड अराउंड $825 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट वो हमारे एक्सपोर्ट्स कंबाइंड होते हैं। लेकिन क्या है, देखिए जी, आपको हमको थोड़ा फ्रैंकली तरीके से बोलना चाहिए, एक्सपोर्ट्स में तो चैलेंज रहता है सबके लिए, हमारे लिए भी है, क्योंकि टैरिफ क्या है कि और सारी दुनिया अब निदान ढूंढ रही है भाई किस तरह से टैरिफ को कम अराउंड करके उसको हैंडल किया जाए। तो इसलिए हमारा जो इंडिया यूके ट्रेड डील है बहुत जल्दी अब इतने सालों से दशक से फंसी हुई थी, अब उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इंडिया यूके जो ट्रेड डील है, हम लोग हैं 5वें नंबर की इकोनॉमी, यूके है 6ठे नंबर की इकोनॉमी। दोनों की इकोनॉमी का साइज मिला लें तो $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी कंबाइन हो जाती है। आप एक दूसरे के मार्केट खोल देते हैं, एक दूसरे के अपॉर्चुनिटीज खोल देते हैं, तो कितना बड़ा पुश मिलेगा जीडीपी को। तो वो कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें ये इन द मिडल ऑफ ऑल दिस टर्मोइल सो टू स्पीक, थिंग्स आर टेकिंग शेप which suit us, several other things like crude, like trade deal, like forex stability, ये सारी चीज़ें हमारे फेवर में हो रही है। In the light of the tariff war between US and China, the fact that the India-UK FTA has actually fructified, as you just said that it was going on for a very long time, but finally it has got fructified. It seems like a win-win situation. The fact that we should be exporting chemicals, textiles and clothing, and so far we were looking for markets in the US for clothing and leather and footwear also, and gems and jewelry. These are all our strengths for exports. Do you think this lowering of tariffs between UK and India, is it actually a win-win situation? And we have of course kept dairy and apple for the benefit of our farmers. How do you view this as aiding our economy? Because this will certainly give a fillip to our growers or our people who are involved in gems and jewelry, like say सूरत में होता है या लेदर में या फिर टेक्सटाइल्स और क्लोथिंग में, जैसे कि साउथ में बहुत बड़ी मार्केट है. See, what happens is any trade deal has to be win-win. It has to suit both the then that's why it's signed. So as I said earlier, you just expand the market and you play on your comparative advantage. For instance, we will be opening our market for Scotch whiskey, good for people like us, okay? And then we would also be getting market for our clothing, for our shirts. What had happened over the past few years was we were very good in clothing, textile. Yes, always we've been. Then in the recent past, we had lost this advantage. If you go to a superstore in London, or especially London, you might find a shirt made in Bangladesh. Or Vietnam. Bangladesh. So that advantage, because Bangladesh was very competitive. In terms of pricing? And quality also. Not to undermine Bangladesh. Bangladesh had this advantage of being an LDC, least developed country. So least developed countries enjoy certain duty advantage. So that advantage was coming. Now we should be able to export our textile clothing at zero duty.
to the. So we will be cost competitive. Right. We will be cost competitive, not only in textile, in shoes, footwear, leather, so a lot of stuff. And in return, we will be giving market, for instance, to scotch, whiskey, certain other. And then in agriculture, if we are giving something, we would also be getting advantage in processed food. Processed food. So it's a win-win situation. Let's hope, and especially in the wake of global headwinds, it comes as a shot in the arm. Right. और इससे पहले कि करेंसी बाजार की ओर चलें, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि बाजार में मजबूती बनी रहेगी आने वाले दिनों में, या जो अभी सिचुएशन है उसको देखते हुए वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए सब इन्वेस्टर्स को? वॉलेटिलिटी के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आज जो इवेंट्स हुए हैं अक्रॉस द बॉर्डर, तो हम तो देश में मॉक ड्रिल भी कर रहे हैं. तो मॉक ड्रिल कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब कि ये थोड़ी है कि भाई अब सब कुछ सेटल हो गया. सेटल तो नहीं हुआ, तो उस तरफ से क्या रिस्पॉन्स आती है, किस तरह के बाकी के मुल्क क्या इंटरफेरेंस करते हैं. इंटरफेरेंस तो हम नहीं अलाउ करते, बट किस तरह का प्रेशर बनता है, क्या माहौल बनता है, तो वो सारी चीज़ें के चलते. और फिर अभी भी जो ट्रेड वार चल रही है वो की ख़त्म थोड़ी हुई है. अभी थोड़ी पॉजिटिविटी आज दुनिया के बाजार में इसलिए भी दिखती है कि यूएस से चाइना ट्रेड टॉक्स भी आगे प्रोग्रेस कर रही है. तो वो जो उथल पुथल हो रही थी, इनफैक्ट इंडिया और यूएस का जो करार है वो भी ऐसा लग रहा है कि शायद वो प्रोग्रेस चल रहा है. उसमें टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आइटम बाय आइटम आपको देखना पड़ता है. वो देयर समथिंग कॉल्ड कि आइटम नहीं, आइटम के अंदर के आइटम पे भी आपको देखना पड़ता है. एक शर्ट है, शर्ट का और टैरिफ होता है, बटन का और होता है, और सुई धागे का और होता है. तो वो जो लाइन होती है वो सब पे नेगोशिएट करना पड़ता है. अगर आपके शर्ट में कॉलर है, कॉलर का जो मटेरियल होता है उस पे और टैरिफ होता है, शर्ट का और होता है, बटन का और होता है, जो धागे का और होता है. ये नेगोशिएशन इतनी आसान नहीं होती. It takes time. But anyway, the tariff war situation has definitely pushed, मतलब एक तरह से टैरिफ वार सिचुएशन जल्दी बढ़ रही है कि उसमें थोड़ा सा निदान मिलेगा. जी, करेंसी बाजार की ओर चलते हैं. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 40 पैसे कमजोर होकर 84 रुपए 83 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. रुपए में ये दबाव भारत और पाकिस्तान के बीच भू राजनीतिक मतभेद बढ़ने के बीच आया. 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 99.43 पर था. Well, the Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved revision of scheme for harnessing and allocating koila transparently in India, Shakti. Policy for coal allocation to power sector. The CCEA in its statement said that this approval is for the grant of fresh coal linkages to thermal power plants of central sector, state sector and independent power producers IPPs. The CCEA said that with the introduction of the revised Shakti policy, the existing 8 paras for coal allocation have been mapped to only 2 windows in the spirit of ease of doing business. It added that the revised Shakti policy will enable the power plants to plan for meeting their coal requirement depending upon their demand for long and short term. एक और फैसले में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI के लिए राष्ट्रीय योजना के उन्नयन और कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दे दी है. ये योजना 1000 सरकारी ITI को हब में अपग्रेड करने और 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी. इसमें इन संस्थानों में कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना भी शामिल होगी. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि इन प्रतिष्ठानों को वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के बजट के तहत की गई घोषणा के अनुसार केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 60,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लागू किया जाएगा. मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और केरल में स्थापित 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की
शैक्षणिक और बुनियादी ढांचे की क्षमता के विस्तार को भी मंजूरी दी। विस्तार का उद्देश्य इन प्रमुख संस्थानों में 6,500 से अधिक छात्रों को अध्ययन करने की सुविधा प्रदान करना है। कैसे देखते हैं आप आज के इन कैबिनेट के अहम फैसलों को? एक तो कोल एलोकेशन को लेकर पावर सेक्टर की ओर, और दूसरा जो स्किल्स बढ़ाने की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एनहांस करने की तरफ जो स्टेप्स लिए गए। दोनों की बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि पहले बिजली पे आते हैं, एनर्जी, कोल। हमारी जो लार्जेस्ट पावर हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कोल से पूरी होती है। तो कोल की जो एलोकेशन है उसमें एफिशिएंसी को बढ़ावा मिलेगा, और जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो अपना प्लानिंग ठीक से कर पाएंगे। उनको वो एक तरह का ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे आपने जिक्र किया वो बड़ी ज़रूरी है। एनर्जी तो लाइफ लाइन है ना इकोनॉमी की। एनर्जी में थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो थिंग्स कम टू ए हॉल्ट। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैसला है। दूसरा, आपने स्किल डेवलपमेंट, स्किल की बड़ी शॉर्टेज है। हम लोगों को बहुत काम करना पड़ेगा एट दी बॉटम ऑफ द पिरामिड में, नीचे से नीचे स्तर पर। 10वीं क्लास का बच्चा है, क्या 12वीं क्लास का बच्चा है, पढ़ के निकला, ITI में एडमिशन मिलना चाहिए। हम लोग क्यों खाली IIT के पीछे क्यों जाएं? वोकेशनल स्किल्स भी जो बहुत वोकेशनल स्किल्स, मतलब वो IIT के, हमने IIT तो अच्छी बात है, दे आर आवर प्राइड, बट बाकी जो बच्चे ब्रिलियंट भी तो हो सकते हैं, जो 12वीं क्लास पढ़े हुए हैं, 10वीं क्लास पढ़े हुए हैं, वो वोकेशनल में अच्छा कर सकते हैं, तो उनको भी स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। तो उनका मॉडर्नाइजेशन अपने आप में बड़ी अहम चीज़ है। And they get what they have aptitude for. That is also... Yes, because what happens in our economy, we have people from different economic segment, people of economic and educational background. A kid who doesn't score 95% doesn't mean that he is below average. Yes. He may be brilliant, Yes. but he may be having aptitude for something else. Yes. So for that, if you need entire value chain, you need training in skill institutes, and such things should be promoted, and it's a good step. In fact, for a long time, we focused just on degrees, and the fact is that there is the employability factor of those We with have degrees is a little less. a lot of engineering institutes, but we Yeah. need to scale them up Scale, in terms exactly. of technology, quality, Yes. quality standards. The education standards have to improve. एंड इवन इन वोकेशनल स्किल्स That's why, बहुत जो स्किल्ड लोग हैं कम मिलते हैं। हम अपने रोजमर्रा की लाइफ में देखते हैं तो बहुत स्कोप है इसमें हम एक्सपेंशन का। लोगों को स्किल में इन्वेस्ट करते ही रहना चाहिए। और क्योंकि अब देखिए ना, टेक्नोलॉजी किस तरह से चेंज हो रही है। जी, आपने मान लीजिए मॉडर्नाइज कर दिया, फिर बैठ गए। नो, एवरी ईयर, एवरी फ्यू मंथ्स यू मस्ट रिव्यू कि व्हाट्स हैपनिंग, डू वी नीड एडिशनल टेक्नोलॉजी, एडिशनल स्किल रिक्वायरमेंट। Yeah, look at the way AI is coming and all that. AI का hype is too much, but AI को we need to adopt it as a tool, important tool. Right. All right, moving on. Well, the Prime Minister, Mr. Narendra Modi, has said that India has opened its space sector to startups, entrepreneurs, and young minds. He said today India has over 250 space startups, and they are contributing to cutting-edge advancements in satellite technology, propulsion systems, imaging, and others. In his video message for the global conference on space exploration, Mr. Modi said India continues to march ahead with renewed confidence, pushing the boundaries of scientific exploration. He said the country's first human space flight mission, Gaganyaan, highlights the nation's rising aspirations. The Prime Minister informed that in the coming weeks, an Indian astronaut will travel to space as part of the joint ISRO-NASA mission to the International Space Station. He said by 2035, the Bharatiya Antariksh Station will open new frontiers in research and global cooperation. Great news there. Well, in terms of cutting edge technologies as well. So we were earlier discussing scaling at the bottom of the pyramid. Now in terms of cutting edge technology also, and we can do it in a very cost effective manner. That's right. The way we went to Mars. Yes. And as literally, let me say, sky's the limit. And then the association of startups. So imagine what kind of confidence we are reposing in our startups. Right. Space is not a child's play. Absolutely. So when you have such confidence, इतना विश्वास बहुत अपने बड़ी स्टार्टअप में opportunity है, है। जी। अपॉर्चुनिटी नहीं, हम
ये दिखाता है कि हमारा स्टार्टअप में कितना कॉन्फिडेंस है कि आपको हम स्पेस तक अपना साझेदार बताते हैं। बिल्कुल, उनकी तरफ से कॉन्फिडेंस है और इधर कैपेबिलिटी भी है। हाँ, कैपेबिलिटीज है, उसको सही तरह रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हम अगर हाथ मिलाएं, सरकार और स्टार्टअप मिलके, हम मिल के चलें, और देन रियली स्काई इज द लिमिट। आकाश की कोई सीमा नहीं। अभी हम बात कर रहे थे इंडिया और यूके की एफटीए जो डील हुई है कल, उसके विस्तार से बताते हैं कि भारत और ब्रिटेन ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि के अंतर्गत महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते के साथ साथ दोहरे योगदान समझौते को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने आज टेलीफोन पर बातचीत में कल टेलीफोन में बातचीत में मुक्त व्यापार समझौते के सफल समापन का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि ये ऐतिहासिक समझौते भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाएंगे तथा व्यापार, निवेश, विकास, रोजगार सृजन और नवाचार को बढ़ावा देंगे। श्री स्टारमर ने कहा कि एक मजबूत और अधिक सुरक्षित अर्थव्यवस्था के लिए उनकी योजना के अंतर्गत दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के साथ गठजोड़ को मजबूत करना और व्यापार बाधाओं को कम करना शामिल है। सो ये जो टैरिफ्स कम किए हैं और मार्केट एक्सेस बढ़ाया है, इससे आपको लगता है कि ट्रेड को बहुत बढ़ावा मिलेगा भारत के एक्सपोर्ट्स को? देखिए जी, निज़ाम पूरा बदल रहा है। निज़ाम ये था कि मल्टीलेटरल का युग था, 30-35 साल चला। अब जो है बाईलेटरल और एक रीजनल कोऑर्डिनेशन चल रहा है। तो रीजनल और बाईलेटरल आप एग्रीमेंट साइन कीजिए, मार्केट दीजिए एक दूसरे को और प्रोग्रेस कीजिए। चलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का रुख करते हैं। प्रमुख एशियाई बाजारों में आज सकारात्मक रुख रहा। ब्याज दरों में कटौती और तरलता की बड़ी मात्रा में वृद्धि करने जैसी कई स्टिमुलस उपायों की चीन की सरकार द्वारा घोषणा करने के बाद चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.8% बढ़ गया। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.5% से अधिक की बढ़त में था। हांगकांग के हैंगसेंग और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक दोनों में 0.13% की वृद्धि हुई, लेकिन जापान का निक्केई सूचकांक 0.14% गिरकर बंद हुआ। इस बीच यूरोपीय क्षेत्र में दिन के कारोबार में अधिकतर मंदी का रुख था। ताज़ा समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक 0.6% के नुकसान पर था। लंदन के फुटसी में 0.3% से अधिक की गिरावट थी और जर्मनी के डैक्स में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था। A look at the U.S. markets now. Well, U.S. stocks ended lower for a second straight session on Tuesday as investor sentiment took a hit following President Donald Trump's uncertain remarks on global trade agreements, dampening hopes for progress on tariff resolutions. The Dow Jones Industrial Average slipped over 0.9%, Nasdaq Composite lost over 0.8%, and the S&P 500 fell more than 0.7%. सो ब्रीफली आप क्या कहेंगे? चीन ने भी अपने रिजर्व रेशियो और ब्याज दरों में कटौती की है। फेड से आपको क्या आशा है? देखिए, फेड का ये वो, क्योंकि इकोनॉमी रिसेशन में की तरफ अगर बढ़ेगी तो वहाँ भी रेट तो कम करने पड़ेंगे। और जैसे अभी जो मार्केट्स यूएस फ्यूचर्स राइज कर रहे हैं, तो ट्रेड डील की पे काफ़ी उम्मीद है, यूएस, चाइना एंड ऑल दिस ट्रेड डील्स। Right. Oil prices gained today amid positive trader sentiment over potential trade talks between US and China to be held this week. Brent crude was trading over 0.6% up at $62.56 per barrel. WTI crude was also up by 0.8% at $59.58 per barrel when reports last came in. Yes. उधर सराफा बाजार में सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.35% गिरकर 97,490 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी 0.31% गिरकर 96,600 रुपए प्रति किलो पर थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक जून में आपूर्ति वाला सोना 0.32% गिरकर 97,775 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं जुलाई में आपूर्ति वाली चांदी 0.18% गिरकर 96,524 रुपए प्रति किलो पर थी। ब्रीफली आपको लगता है यूएस और चाइना में भी लग रहा है कुछ सॉफ्टनिंग हो रही है और ये विश्व के लिए अच्छा होगा? नहीं, चल रही है ना, बातचीत चल रही है जी, और उम्मीद है कि इस कुछ ही नतीजे पे पहुंचेंगे। इसी के चलते कल तो यूएस मार्केट गिरी थी, अभी यूएस फ्यूचर्स जो हैं ग्रीन में है, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही है कि यूएस डील हो जाए। समय समाप्त हो रहा है। प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शामिल होने के लिए।
And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Benchmark domestic equity indices end in positive territory, offsetting geopolitical tensions. Sensex gains 106 points. Nifty closes above 24,400. Cabinet approves revised Shakti policy for coal allocation to power sector. And global crude oil prices continue upward trend. Brent crude trades at $62.56 per barrel. On that note, friends, it's time for us to bid adieu. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Sonu Sood, and our expert, Prakash Chawla ji signing off. Namaskar. Namaskar.